Hello, dear students. Welcome to the chapter My Brother, My Brother. Sher Singh's little brother lay in the hut with a pain in his stomach that was getting worse. Sher Singh himself was only about 12 years old, small and cheerful, a child of the jungle. His brother was several years younger. यानी कि उसका छोटा भाई था, उसके पेट में दर्द हो रहा था. I will wring out rages in the boiling water and lay them on his stomach, said his mother. She did not weep. She had lived through everything over and over again. The steaming rages did not help. After a while, Sher Singh's mother said, he must होगा यहाँ पे, okay? He must be carried to the hospital at कलाघाट एक जगह है, वहाँ पर उसको ले जाना पड़ेगा अस्पताल में, उसके पेट में दर्द हो रहा था. Then Sher Singh thought that his brother was dying. All jungle people somehow thought that the hospital was the last sort of the doomed. I will run for my father, he cried. It may be days before you find him. Sher Singh's father was away in the jungle with a photographic expedition. All the men of Redwani village too were with the expedition as visitors. Sher Singh looked at his younger brother and saw that he was in great pain. Kalaghat was at least 50 miles away. बहुत दूर था वो, 50 miles away था. But Sher Singh hoped that if he could get through the jungle and cross two rivers in between, he might get a lift in a bullock cart or perhaps even a broken down truck for the last part of his journey. सोच रहा था कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो जल्दी पहुंच जाए. Sher Singh walked alone, carrying his brother on his back. He walked through the jungle. Night fell. The sky became purple black. It blazed with a star. Sher Singh had good eyes. He could still see. Presently the moon rose. The sight of bear tracks, the dust, the square front paws and long back one, the shaggy claws made him glance around uneasily. On a cliff above a river bed, the cliff छोटी है ना. Sher Singh knew he could go now further without the rest. बिना रेस्ट के आगे नहीं जा पाएगा. Sweat was running off his shaking flesh. He sat Kunwar down gently against a tree. छोटे भाई का नाम कुंवर. It was then that he heard the jostle and squeal of elephants below him on riverbed. The elephants travelled. He could see the cows and the babies, and one great old tusker was playing its trunk to and fro to learn whatever the breeze could tell it, and suddenly it hesitated. The trunk came round toward the boys. Sher Singh, chilled with fright, with Kunwar to carry, he could neither climb nor run. न तो चढ़ सका न दौड़ सका. हाथी थे आसपास वो. द टस्कर स्नॉर्टेड, ट्रम्पेट एंड शूक इट्स हॉर्न. तो जो पूरा हाथियों का झुंड जा रहा था वो चिंगाड़ रहे थे ना. इट हरीडली ऑन एंग्रीली अप द रिवर बेड एंड ऑल द हर्ड वेंट विद इट. दे डिसअपीयर्ड. चले गए वो नदी सोते हुए. शेर सिंह ब्रीथ्ड वन मोर प्रेयर ऑफ थैंक्स दिस टाइम. एक प्रार्थना की, थैंक का, and got ready to move with Kunwar on his back once again. He scrambled down into the river bed. He stepped into the river. अब पानी में पहुंचता हुआ नदी के. The water was cold and deep. ठंडा था और गहरा भी था. Thank goodness there was a bridge at the second river. It was a flimsy, यानी कमजोर ब्रिज था. Thing made of bamboo poles. Bamboo poles का बना हुआ था. Stones का, thick grass का है. And river gravel, जो river से gravel निकलता है, mud जो निकलता है. But it was at least a bridge. He plodded steadily on. Towards midnight, he heard the second river ahead of him. He heard it from far away, steady roar of flood. जो नदी बह रही थी उसकी आवाज आ रही थी पानी की. When he came out on the shore, he saw it, a big head of snow. Must have melted yesterday, and here it was. From bank to bank, the river formed. He looked for the bridge. It was not there. जिस ब्रिज की उम्मीद में था वो वहां था ही नहीं. So now how to cross? अब वो कैसे क्रॉस करेगा? There was not a chance to swim. तैरने का तो कोई चांस नहीं था. Even alone, अकेले भी नहीं तैर सकता. He lost, खो जाता. Perhaps among the wreckage of the bridge there was a way. जो टूटा हुआ पुल था उसके मलबे से भी वो. Sher Singh gathered grass and plaited it into a rope. He tied the rope round his brother and himself so they would keep together. Then he entered the water just above the bridge. It was so cold that he could hardly keep his hold. He did not know if his brother was alive or dead. But he kept the child's head above water and inch by inch moved along. He was deep, blinded, frozen and tired. But he went on and on. है ना. कैसा हो गया? डीप, बहरा हो गया, अंधा हो गया, जम गया, थक गया, लेकिन वो नदी में चलता रहा. Then the river seems to lose power
दे वर थ्रू, और वो नदी के पार आ गए. आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड. उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता. ही वॉज वॉकिंग ऑन एंड ऑन, देयर वॉज ए रोड, देन देयर वॉज अ बेटर रोड, एक अच्छी रोड मिल गई. फॉर अवे इन अनदर वर्ल्ड हियर केम साउंड्स hurling a blaze. Suddenly, somehow, people. After that, the next he knew they were in a block cart and a truck. Then a truck. पहले वो बैलगाड़ी में, फिर ट्रक में. Where have you come from, boy? Laldwani carried him along across the river in flood. They were at the hospital. Sher Singh always felt shy of big buildings. He did not go in. Much later, the doctor came out on the veranda and said, "You are the boy who brought the child in from Laldwani." Yes. Then a smile broke all over the doctor's gentle face. Sher Singh's Bahadur, he said, "A brother will live. Come and see." आओ देखो. अब यहाँ जो वर्ड दिए गए जैसे ब्लेज्ड, ब्लेज का मतलब क्या था? बर्न विद ब्राइट स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स, है ना, ज्वालाएं चमकती हैं. और शैगी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग थिक, बहुत ही लंबा और बहुत ही गाढ़ा टाइप का. रैग्स, रैग्स जो माँ कह रही थी ना, क्लॉथ्स दैट आर वेरी ओल्ड एंड टॉर्न, पुराना कपड़ा जो फट गया हो. ओके, तो कंप्लीट द सीक्वेंस टू फाइंड आउट हाउ शेर सिंह रीच द हॉस्पिटल. ओके, चलिए शेर सिंह हॉस्पिटल कैसे पहुंच. तो क्रॉस करता है रिवर को, क्या करता है, बाद वो क्या करता है, बाद एक रिवर को और क्रॉस करता, फिर से अगेन रिवर क्रॉस करता, सेकंड रिवर, बाद बेटर रोड आती है, बाद और अच्छी रोड आती है. हाँ, उसे क्या मिलता है यहाँ पर? बुलक कार्ट मिलता है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी मिलती, और एक और रोड यहाँ पे मिलती, दो रोड मिलती, राइट. क्वांटिफायर्स की बात करेंगे यहाँ पर. जैसे आप क्वांटिटी जानना चाहते हैं, कितना, हाउ मच, सम का यूज़ कर, एनी का यूज़ करते हैं निगेटिव सेंस. यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव ही रखना है. अगर पॉजिटिव सेंस है तो लिखेंगे इज देयर सम वाटर इन द, आई डोंट हैव. नेगेटिव रखना है तो एनी मार्बल्स, डू यू थिंक यू कैन लैंड मी. फॉर्मेटिव है, सम मनी. आर देयर, नेगेटिव है तो एनी. अब मच और मैनी का यूज़ कर, किसका करेंगे? मच और मैनी का. मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, मैनी का यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन. चलिए यहाँ पे कर लेते हैं. मैनी एप्पल्स, मैनी हो जाएगा यहाँ. टाइम तो मच टाइम. एनी चिल्ड्रन, काउंट हो रहा. अब फ्यू, ए फ्यू की बात करते हैं. दोनों के यूज़ काउंटेबल नाउन में करते हैं. का मतलब होता है कि ज़्यादा इनफ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है. ए फ्यू का मतलब होता है कि इनफ है, यानी कि वो पर्याप्त है. का मतलब ना के बराबर. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ए फ्यू है तो इनफ है. ए फ्यू एप्पल्स पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, फ्यू लगाएंगे. इनफ है, ए फ्यू लगा. नॉट इनफ है तो ओनली फ्यू. अब करेंगे लिटिल, लिटिल. दोनों के यूज़ काउंटेबल नाउन में कर. लिटिल क्या है? क्योंकि तो इनफ नहीं है वहाँ लिटिल लगता है, और जहाँ पर क्या होता है, इनफ होता है, वहाँ पर ए लिटिल लगाते हैं. ब्रैकेट में दिया हमें इनफ, ए लिटिल. देन यू नोज ए लिटिल, थोड़ी इंग्लिश जान. नॉट इनफ है, लिटिल मनी, ना के बराबर. इनफ है, ए लिटिल हाई, थोड़ा सा ऊंचा. देयर वॉज लिटिल नॉइज, ना के बराबर. अब इनफ और प्लेंटी का मतलब क्या है? इनफ का यूज़ करेंगे हम लोग, और प्लेंटी का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में कर सकते हैं. अब देखिए हम, वी डोंट हैव इनफ मनी, इतना मनी नहीं है कि हम लोग प्रोविजंस को खरीद सकते. देयर इज प्लेंटी ऑफ शुगर, भरा पड़ा है पूरा जार, प्लेंटी. व्हेन यू हैव, जब तुम पर बहुत ज़्यादा पैसा हो. प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी मनी या इनफ मनी, और पर्याप्त पैसा हो. प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी का यूज़ और इनफ का यूज़ हमने यहाँ पे किया. तो आप पढ़ लेंगे. 3 वेज हैं एस कहने के. कैट्स, एस का साउंड आ रहा. बीज, बीज में एस का नहीं आएगा, जेड का साउंड, ठीक है. और हॉर्सेज, हॉर्जेज, हॉर्जेज, इस का साउंड आ रहा. केयरिंग पेरेंट्स, इनक्रेडिबल फ्रेंड्स, blood related, love oriented, if away from home, nostalgic for them, grown up together, soulmates forever. यहाँ पर आपको ये फिल करना है. dives well and swims like a, कैसे वो तैर रहा था, like a fish,
फिश भर देना, ठीक है, swims like a fish. He saw the distant star. He must have eyes like hawk. तिल की आंखें. Don't call Chandran. He chatters like monkey. The mattress is as light as feather. पंख के जितनी हल्की. Her heart is a pure as gold. Gold कितना जितना. Back tire of the car is as flat as pancake. Pancake की तरह फ्लैट हो गया बैक टायर का. अब कर ही लेंगे टिक वाले. हाउ डिड शेर सिंह टेक हिज ब्रदर टू कालाघाट? कैसे ले गया? वॉक से ले गया, बैग पे ले गया, वो अपनी बैग पे लेके गया. Why did शेर सिंह glance around uneasily on the way to hospital? टाइगर ट्रैक्स था, बेयर ट्रैक्स था, एलिफेंट ट्रैक्स थे वहां पर. एलिफेंट ट्रैक्स, हालांकि बेयर ट्रैक और था. Why did शेर सिंह breathe a prayer of thanks? एलिफेंट चले गए थे, ठीक है. ये नोटबुक के लिए है. और ये अगेन पूरा जब आप स्टोरी पढ़ोगे माय ब्रदर आप यहाँ पर फिल करोगे वहां से देख करके, ठीक है. ये डायलॉग्स हैं, पेयर वर्क है, ठीक है. अपने फ्रेंड वरुण को बता रहा है. कौन बता रहा है? रोहन. क्लास में आपका सिचुएशन बनानी, फिर उसमें एक्ट करना है कि आपने बहुत ही ब्रेव पर्सन की तरह हेल्प की हो किसी व्यक्ति की, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग. थैंक यू.